strongly say that
Hi Amit. Amit, can you hear me? सुनाई दे रहा है? वो अनम्यूट है। अमित सर, आप अनम्यूट है सर, अनम्यूट करो सर। आई कैन हियर यू क्वेश्चन जी। Okay, fair. चलो, I'm audible. यस यस। So I'll through the course of the discussion, I'll keep you all rest of you on, of course, the non-video. I'll stop the video for everyone else. Largely, it will only be me and Amit who will be there on the video. And I'll just at the right time start recording as well. It's already recording. It's nice. Yeah. Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग अमित, किधर है तू? जयपुर में है? Yes, Jaipur. कल जयपुर भाग रहा है? Yes. All set for my 58th full marathon. 50th फुल मैराथन, वाओ. 55th. 55th, वाओ. तो भाई अपन थोड़ा विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, लेट अदर्स आल्सो जॉइन इन. 5 बजा है तो कितना Sure. लोग को लेके गया है We are उधर? total 48 members 48. and 32 doing for full marathon. वाओ. इन जयपुर. हाँ, एंड ये सब क्या सब अपना बॉम्बे से है? बॉम्बे, नवी Yes, मुंबई? all Mumbai, Navi Mumbai, Gujalgaon, वाओ. Nagpur. तो ये सब टाटा मुंबई करने के बाद अभी तुम लोग No. Tata Mumbai, they did 21 kilometers. अच्छा, ओके. Only I did 42. दैट तो देखा हमने. इंटरेस्टिंग. Agree. So good evening everyone, and thank you for being there on this conversation. This is the fifth one that I'm doing in the last few months. Some of you have joined in the earlier sessions that we have conducted, and if you haven't, you can watch all of them on YouTube. I upload all the sessions record karke YouTube par, so you can definitely find those sessions on YouTube. And this one also, of course, मैं record करके I'll put it on YouTube so for everyone to see. The idea of doing these sessions and talking to people who have run Comrades and people who have been part of the Comrades ecosystem is to get all of you and everyone an understanding of what Comrades is, so that it helps all of you to kind of reduce your anxieties, answer your queries, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, and hence so that all of you have a better Comrades run, a better training experience from Feb to June, and a better Comrades run, right? The beauty about, I think, the Indian ecosystem is that when we all train for Comrades, right? We train for Comrades as one team. Yeah, right. All of us come together and try to. I've seen an excellent camaraderie over the years where everybody is willing to help each other. We all are on a common WhatsApp group, and people hence share a lot of information, knowledge. There is a lot of experience on the group now over the years. So for people who are running for the first time, people who have any questions, any queries pertaining to travel, hotel stay, training, visa, nutrition, all of those, most of those things can be solved on the chat. And what I will try to do from my end is have such more sessions every other weekend, so that it just makes the Comrades journey for all of you much easier. And if there is anything else you guys need assistance on, please feel free to reach out.
And that is the way. The idea is that we get more and more people running Comrades and really enjoying that Comrades experience, because a lot of us who have done once have been doing again and again and again. It just tells us that there is something more beautiful about this race than the other world majors or any other race, right? So anyway, today we are having a conversation and discussion with Amit, Coach Amit Kumar. Now I will just introduce you all to him. So Amit is clearly works for the Indian Navy Civil Services, and he is a certified coach by the Sports Authority of India, right? And I mean, his running career is like truly commendable, having run 54 full marathons. Tomorrow he's running his 55th full marathon at Jaipur. Right now he's in Jaipur, and he has kind of run 70 half marathons, right? So, and of course, in his younger days, I would like to say he has been a national level gold medalist for steeplechase and 5,000 meter run and even 10,000 meter run. So clearly, he has an athletics background, but and hence when he has run Comrades, he has run Comrades 4 times, and 3 of them have been sub 9 hour finishes, which is a very commendable effort, and I'm sure he looks stronger and fitter to do another sub 9. And now he, of course, coaches, trains. Happy Feet Champions is the name of his training group, and all through the year he trains people in Bombay and across the country. Today, of course, he has taken a 48 member team to Jaipur to run the marathon there, and 32 out of them are doing a full. So Amit, that's a really commendable effort, right? And so welcome to this conversation. Over the course of next 1 hour, right? क्या करेंगे हम? I'll try to ask questions more about you first, then running, and then Comrades, right? And Sure. then we will leave it open for some 15-20 minutes for question and answer. जिनको भी जो भी पूछना है बाद में पूछ सकते हैं. So Amit, while of course I read out what you are, right? So I understand you are with the Indian Navy now, and you. Yes. So थोड़ा अपने बारे में बताओ about who you are and a bit about your running as an journey as an athlete. Hi everyone. Good evening, all future comrades and comrades. So myself, Amit Kumar Yadav, famous as Coach Amit Kumar. I'm working since 17 years from Indian Navy Civil Services. Currently posted in Naval Dockyard, Nausena, Godiwara, Mumbai. And I've been training Navy persons also, service personnel, Navy captains, commodores, commanders from last 4-5 years. And currently last 6 years I'm training Happy Feet Champions. मेरी wife का है. He is a founder and proprietor. I have become a head coach. I train them. और मैं एक स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट से ही आया हूँ नेवी में, क्योंकि मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ. बिकॉज मेरे फादर भी BSF के थे, BSF सब इंस्पेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. तो स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट मेरा नेवी में स्पोर्ट्स कोटा में हुआ था. आई वाज वेरी गुड इन नेशनल प्लेयर इन स्टीपल चेस, 5,000 मीटर एंड 10,000 मीटर. देन सडनली नेवी ज्वाइन करने के बाद आफ्टर जब मैं मुंबई आया 2012 में, तब मैंने देखा कि यहाँ पे मैराथन बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है. देन आई स्टार्टेड लॉन्ग डिस्टेंस 42 अल्ट्रा, 100 किलोमीटर, 12 hours, 24 hours, 36 hours, and of course my favorite course Comrades 4 times. So 2012 से आपने लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट किया, मतलब आप अभी 12 साल से ब्रॉडली लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं. अदरवाइज पहले आप 3,000 मीटर, 5,000 मीटर, 10,000 मीटर करते थे. So ये हाँ ट्रांजिशन करेक्ट. एंड आप ट्रेनिंग कितने साल से कर रहे हो? ट्रेनिंग मैं करा रहा हूँ. मैं खुद का ट्रेनिंग आई एम ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 30 years. व्हेन आई एम इन क्लास 6 तभी से मेरा ट्रेनिंग चालू है. अच्छा, वेरी गुड. एंड एज अ ट्रेनर as a trainer I started from 2016. 2016 I started my yes.
Oh, excellent, और excellent. तो अभी नाउ काइंड मैंने कितने लोगों को ट्रेन करते हैं? Amit, your network is a bit poor. अभी करेंटली मेरे पे नई मुंबई थाने मिला के 160 लोग अभी। यस, थोड़ा जयपुर में नेटवर्क का चल रहा है, फिर भी मैंने वाईफाई ऑन किया है, ठीक। तो 160, टोटल अभी you टोटल थाने नई मुंबई 160 रनर्स है जो ऑफलाइन। हाँ, यस, और उसमें से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। गुजरात में है, साउथ अफ्रीका के 2-3 रनर्स है, दुबई के रनर्स है, देन गुजरात आपको आसाम कलकत्ता के 8-9 रनर्स है, जिनको मैं ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स है जिनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। Oh, very nice, very nice. So broadly, I think 160 trainer runners you are training and online as well across the country and outside of the country also. Excellent, excellent. Yes, yes. Really commendable. तो अभी ये मतलब when you say you have run 55 full marathons, मतलब क्या हर साल you end up running 4 to 5 full marathons is what I can gauge, right? सिर्फ ज्यादा ही होता है, बिकॉज एवरी मंथ मैंने प्लान किया था एक फुल मैराथन करने के लिए, बट लेकिन अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल गैप हो गया, नहीं तो अभी तक मेरा 70 फुल मैराथन हो जाते। Wow. And so and तो and कोविड की and वजह से 2 साल पीछे पीछे चला गया। हाँ, 2 साल मिस हो गया बीच में because of COVID. Correct. And यस, comrades, since when are you training for? When was your first comrades? 2018 2018 was your first comrade. So 2018 18, was my first 19. हाँ, यस, अगेन 2 साल and ब्रेक, हाँ, अगेन 22 23। very nice. तो So फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया, दैट टाइम माय टाइमिंग वाज 9:28 बिकॉज आई वाज वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जहाँ आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ट्रेनिंग प्रॉपर करके ही जाना है। तो मैं अपने correct. बच्चों को ही समझाता हूँ कि आपको ट्रेनिंग प्रॉपर करके ही कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करना है। अगर आप लाइट लोगे, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा रनर हूँ, मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे रनर्स को जो अच्छे रनर्स है, लेकिन कॉन्फिडेंस में उनका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ट्रेनिंग प्रॉपर करके ही कॉन्फिडेंस पे जाना है, या तो फिर आप मत जाओ। तो ऐसा क्या है कॉमरेड्स में कि अभी आप यू डन इट 4 times और 5वीं बार यस, करना है? यस, यस, बिकॉज कॉमरेड्स, जब मैं सुना मैं बोला कि एक नॉर्मल रेस होगा, बिकॉज इंडिया में इतने सारे अल्ट्रा होते हैं। बट जब मैंने वो माहौल पे उतरा, जो स्टार्टिंग लाइन, वो जो सॉन्ग्स बजते हैं कांग्रेस के, कुकरू का साउंड, ये रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब मैंने रन स्टार्ट किया है, क्राउड सपोर्ट एवरीथिंग, आप ऐसा इंडिया में आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। और एक 90 किलोमीटर स्ट्रेच को कम्प्लीटली बंद करके इवेंट करवाना, और वो कांग्रेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप या तो 6 घंटे में भागो या फिर 12 घंटे में करो, कभी आप अकेले नहीं भागते। ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपके आजू बाजू हमेशा रनर्स रहेंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका सपोर्ट सिस्टम, और स्पेशली द स्मॉल मेडल, यूनिक मेडल, लाइक करेक्ट. बहुत। या सरप्राइजिंगली हम जितनी मेहनत करते हैं 5 महीने और द साइज ऑफ द मेडल इज जस्ट टू स्मॉल फॉर द एफर्ट. यस, 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 करेक्ट, करेक्ट. सो अभी 4 हो गए और कितने करने हैं? प्लानिंग टू डू 10 बिल रमस, दैट्स माय प्लान। करेक्ट. इंडिया के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड करूं कि 10 बिल रमन जैसे हमारे सतीश सर है, आनंद पाटिल सर है, और 2-3 सर जिन्होंने 10 कांग्रेस किया है। तो मेरा एक सपना है कि मैं 10 बिल रन करके अपने नाम एक रिकॉर्ड करूं इंडिया की तरफ से। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर हो जाएगा, considering that you have a long history of being an athlete and you will being a trainer, you know what is required to run a comrade, and I'm sure वो जर्नी चलता रहेगा. So Amit, now that आपने 4 किए हैं, आपका long distance running is like a 12-year history and you are a trainer. Let us talk a bit about training, right? Because I'm sure a lot of first timers are also there on this call and they want to know and understand how should you approach comrades training, right? अभी से शुरू करेंगे. We are at the right time. February, March, April, May, and then 9th June is the run.
हाउ शुड वन अप्रोच, कैसे ट्रेनिंग को अप्रोच कैसे करना है, हाउ डू आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर ट्रेनीज उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हो, और क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है? Okay. या एग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट टाइम कॉम्रेड कर रहे हैं उनके लिए हम एक फर्स्ट अटेम्प्ट होता है आपका 42 किलोमीटर, आपको 450 में कंप्लीट करना है। तो हम लोग, मेरा फर्स्ट गोल रहता है कि अप टू February 28, 29, क्लोज लास्ट February आपको 42 क्वालिफाई करना है। फर्स्ट प्रोसेस, अगर आप क्वालिफाई करते हैं एक अच्छे स्टूपिड टाइम, अगर आप 430 में क्वालिफाई करते हैं, देन ओनली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉमर्स चलिए। इफ यू आर इन बॉर्डर 440, 445, देन आई विल सजेस्ट आप एक साल और ट्रेनिंग करो, बी 440, 435, 440 मिनिमम, बिकॉज कॉमर्स क्वालिफिकेशन इज 450। बट मैंने एक स्टैंडर्ड रखा कि जो 430 या फिर 440 कर रहे हैं, मैक्सिमम 440, उनको ही मैं कॉमर्स लेके जाऊंगा, बिकॉज दे विल फिनिश इन 11 to 12 आवर्स। ऐसा एक हम लोगों ने बनाया। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है हमारे मार्च के बाद से ही। एक फर्स्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। इट्स इंक्लूड लॉट्स ऑफ हिल ट्रेनिंग, लोनावाला, सतारा, समथिंग समथिंग हिल, कोई हम हिल को छोड़ते नहीं है। पारसिक हिल, बीएनपी, ठाणे, एवुड हिल, एवरी हिल। और मिनिमम हर संडे आपको 30 to 40 किलोमीटर भागना ही है। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अभी February 25 तक अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो, या फिर आपको करना है कि मेरी ट्रेनिंग, बिकॉज टाटा अल्ट्रा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। टाटा अल्ट्रा ये भी आपको 25 फेब को है। तो हमारी टीम से भी 60 लोग जा रहे हैं टाटा अल्ट्रा के लिए, जो 50 किलोमीटर कर रहे हैं। इज बिग ग्रुप टाटा अल्ट्रा के लिए। तो दीपक सर ने स्पेशली मेरे को कांग्रेस कहा कि अमित, आपने इतना बड़ा टीम तैयार किया टाटा अल्ट्रा की, जो 50 किलोमीटर कर रहे हैं 60 लोग। तो हमारा हम टाटा अल्ट्रा को इजी लेते हैं एज आप कितने पानी में हो, आपको कितना ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लेते हैं टाटा अल्ट्रा को। उसके ऊपर फोकस करते हैं। फ्रॉम मार्च स्टार्ट योर ट्रेनिंग। मार्च में माइलेज करना है, अप्रैल में थोड़ा माइलेज एक्सटेंड करना है, और मई में सबसे ज्यादा माइलेज करना है। सो आप बोल रहे हो कि अगर आप फुल मैराथन अराउंड 430 एंड बेटर कर सको, देन यू हैव फार बेटर चांसेस ऑफ फिनिशिंग अ कॉमरेड। एंड बेस्ड ऑन हाउ यू डू एट द टाटा अल्ट्रा, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटरमाइन करते हो हर एक रनर के लिए। टोटली एग्री। And you saying, suggesting that broadly every Sunday 30-35 kilometers is your long run prescription. So which means Yes. in a week Yes, yes. 60 odd kilometers हो जाता है, महीने का 250 किलोमीटर हो जाता है, and 4 महीने का broadly 1000-1100 हम लोग किलोमीटर। एग्री नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वीकली माइलेज मिनिमम 90 प्लस किलोमीटर करना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, वीक डेज पे एक हम लोग हाफ मैराथन करते हैं, हिल हाफ मैराथन, ओके मिड ऑफ द वीक। ओके। तो इसके सब मिला के हमारा 75 to 80 किलोमीटर मिनिमम मैनेज होता है। बिकॉज अब Okay. जब आपको लोड डालना है तो आपको वीक डेज पे एक हाफ मैराथन मारना बहुत जरूरी है। Okay, interesting. बिकॉज Okay, वी fine. स्टार्टेड ट्रेनिंग इन 4:30। या हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग 4:30 वीक डेज पे, एंड फिनिश बाय 7-7:15। तो 2 hours 30 minutes we have, मिनिमम 10 किलोमीटर हमारा रनिंग होता ही है। देन वर्कआउट हम करते हैं। जैसे आपको मिनिमम माइलेज आपको 80 प्लस किलोमीटर रखना ही है वीकली माइलेज। Wow. So guys, what Amit is suggesting, as per his training prescription and unka training plan, he suggests that people run around, runners train for 80 kilometers a week broadly. So while I have a different thought process there, but doesn't mean anything is right or wrong, right? Amit is a Yes. fast runner. He wants to do Bill Rowans every year, No. and he wants his trainees also to do Bill Rowan every year. So, but so I do less, right? I genuinely do less. I think 60-70 is broadly what I manage to do. I would like to do more, but it's what I've been managing to do. But so what Amit is saying is the way he trains, is the way he thinks training his team members. Yes. And the fact that he himself is running sub 9 hours, Agree. and he has so many people joining for comrades. So it's a training model which is working, which is fine, right? So every training model is of course different. सब ट्रेनर का ट्रेनिंग मॉडल अलग होता है, बट इट इज वर्किंग, इट इज बीन सक्सेसफुल. So yeah, I mean, whatever suits everyone, right? Finally,
every body is different, every individual's life is different. So, but yeah, mileage is important. The moot point being mileage is important. So Amit, मतलब 4 महीने में minimum 1000 kilometers तो करा ही लेते हो minimum. मिनिमम 1000 आपको मिनिमम विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है फिर भी आपको वो नहीं हो पाएगा. आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ माइलेज आपको फोकस करना है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी. And strength training हफ्ते में 2 बार. या वीकली 2 days मिनिमम, मैक्सिमम 3 days. Okay, okay. 2 days and maximum 3 days. Okay. Yes, yes. Strength training must. Because if you are planning for a comrade, only saving is strength training. थोड़ा हाँ. माइलेज कम होगा चलेगा, लेकिन अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कमी हुई तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी. बिकॉज हाँ. कॉमरेड्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. Of course, of course. पीपल आर डूइंग ओनली माइलेज. आई सॉ टू मेनी पीपल्स, वो लोग खाली माइलेज करते हैं, माइलेज 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 400 किलोमीटर करते हैं और ज्यादा माइलेज के चक्कर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भूल जाते हैं. फिर वहां पे जाके उनको तकलीफ होता है, वो उनका टाइमिंग खराब होता है, डीएनएफ होते हैं. तो वैसा नहीं करना है, आपको टोटली बैलेंस प्लान करना है. तो ऐसा नहीं कि आपको कोई ना कोई कॉमर्स के लिए एक आदमी गाइड चाहिए, चाहे वो कोच हो, ट्रेनर हो, मेंटर हो. यहाँ बहुत सारे सीनियर रनर्स भी है, तो आप उनको कम से कम उनसे आप गाइड ले लो. सर कितना करना है, नहीं करना है. गाइडेंस बहुत जरूरी है. ऐसे अंधाधुंध आपको सिंगल ट्रेनिंग नहीं करना है. So आप बोल रहे हो कि of course apart from 80-90 kilometers of mileage, 2 days at least strength training is important as per your training plan, right? Correct. Fair. Compulsory. Yeah. So Yes, there is yes, Nihal has put a question. I'll just answer that because it's to the. So Nihal, Yes. while of course Amit's training prescription and plan is 90 kilometers, broadly 80 to 90. If you're asking me what I have done as a question, our plan is a little bit moderate. We restrict ourselves to 1000 kilometers in across 4 months, and broadly 250 kilometers a month. Which means on Sundays we are doing like 30, in a week 60 to 65, at best 70. But the difference between the two is that at least I would like to ask Amit also that question. But my belief is that to have a faster comrades, to have a stronger comrades, more mileage definitely helps, apart from the strength training that Amit spoke about. But it has to marry, or it has to tie in with what you're doing otherwise in life also, right? Everybody, we all have a work and family life beyond running also. So somewhere balance करना है सब में कि ट्रेनिंग करने के बाद काम पे भी जा सको, काम के बाद घर भी आ सको. वो बैलेंस करके सबको चलना है. If आप 90 मैनेज कर सकते हो, nothing like it. The other important thing is your body should sustain that load for 3 to 4 months. राइट के बिकॉज अगर ये इंटेंसिटी का ट्रेनिंग है, जो भी इंटेंसिटी का हो, 80 किलोमीटर अ वीक हो, 60 हो, 90 हो, 4 महीने वो सस्टेन करना है, राइट, विद अ लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स. बट वी कैनॉट हैव अ सिचुएशन, एंड वी डोंट वांट टू हैव अ सिचुएशन कि आपको मई में इंजरीज हो रहा है, बॉडी बहुत टायर्ड फील कर रहा है, माइंड इज टायर्ड. यू डोंट वांट दैट. My thought, I feel that we should peak in May, right? You should be like at your best fitness. Your weight, body composition, your strength, it has to be the best in May end. That is when you will have an outstanding comrades on the 9th of June. So train as per your plan, irrespective of whom are you training with and from. And please ensure that you listen to your body. You do what your body supports, right? Every body is different, every individual is different. Somebody works 8 hours a day, somebody works 12 hours a day after training in the morning, right? So वो एक ध्यान में रख के करना है कि you really should not train so much that May etc. you are like extremely tired. Okay, so please keep that in mind. So Amit, one question for you, right, in that context. To do a faster comrades, is more mileage necessary? Amit, could you? Yes. I will point it out. अगर आपको फास्ट कॉम्बैट करना है, 739 सब 9 करना है, तो आपको माइलेज ज्यादा करना पड़ेगा. ये विनर्स के जो उनके विनर्स होते हैं, उनका ट्रेनिंग प्लान चेक करेंगे.
जो कोच पैरी है उनका प्लान चेक करेंगे। जो लोग फास्टर कॉमरेड्स है उनको माइलेज एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको सबका बॉडी अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि आपको 90 कराते हैं हम लोग, हमारे पास भी 12 घंटे के कुछ रनर्स है जिनको माइलेज कटअप करते हैं और उनका स्ट्रेंथनिंग पे ज्यादा लोड डालते हैं। तो ये मैन टू मैन बॉडी डिपेंड करता है। कोच अमित कुमार सबको ही नहीं है एंड सब कोई कसम मोदी नहीं है, तो सबका बॉडी अलग है। तो अब Correct. आपको अपने, इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने जो कोच है या फिर सीनियर मेंटर है आप उनसे बात कीजिए, सर मेरा आप बॉडी के हिसाब से, मेरा पेस के हिसाब से मेरा क्या प्लान होना चाहिए। एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं 3.5 घंटे में फुल मैराथन कर रहा हूँ, देन यू आर एलिजिबल फॉर सब 9 फिनिश। अगर आपको लगता है मैं 4 घंटे में कर रहा हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर सब 10 फिनिश। एक साइंस ऐसा बनाया गया है, ऐसा होता भी है, बहुत सालों से ऐसे चल रहा है, मैंने रीड किया है ना, तो ऐसे चल रहा है। बट लेकिन अगर आपका टाइमिंग 5 घंटा है और आप बोलोगे सर मेरे को, या फिर 4 hours 30 minutes है, मिलोगे सर मेरे को सब 9 करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोई मैजिक नहीं है कि मैं आपको जादू की पुतली बांध के डाल दिया और आपका सब 9 हो गया। एक बॉडी का लिमिट है, तो हर आदमी को अपने लिमिट को जानना है। कॉमरेड्स फिनिश करना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे आप 12 घंटे में करो चाहे सब 9 करो। एवरी वन इज अ विनर इन कॉमरेड्स। कॉमरेड्स फिनिशर सबको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास बिल रवन तो मैं बिल रवन कहलाता हूँ, नहीं। No, लोग मुझे भी कॉमरेड्स कहते हैं, कश्यप सर को ही बोलते हैं, सतीश सर को ही बोलते हैं। तो कॉमरेड्स फिनिश करना ही बहुत बड़ी बात है कि टाइमिंग डजंट मैटर। true. I mean, लेकिन हेलो Amit, this is a very important point जो आपने बताया कि हेलो every finisher in a comrades is actually a winner, right? 4 महीने ट्रेनिंग करना, 1000 किलोमीटर तक माइलेज करना एंड फिनिश लाइन में जाके खड़े रहना itself is a great journey, right? Whether you finish the comrade or not finish the comrade, that's secondary. But when you put your body through this effort over 4 months, जब आप खुद से ये ट्रेनिंग करते हो, तब आपको anyway at the end of 4 months you're a stronger person, mentally, physically. That itself is a victory in some form and shape, right? And then of course on the race day, what you go through, right? So it is as Amit said, okay, realistic target hona chahiye depending on how you are today and how you will shape up over the next 4 months, and then target accordingly. Over the years, we have seen people who do well at comrades are the ones who kind of make realistic judgments about their own self. Unka judgment about their own potential is very realistic. If you aspire more than what you are capable of, it is a chance that comrades में फंस सको. But अगर आपका expectation थोड़ा easy हो, realistic हो, then you will do better at comrades, right? So Amit, another question, right? Like we said कि 4 महीने training करना पड़ता है, training is hard. On the race day also, you have a 90-kilometer run. Apart from the physical fitness, right, the body fitness, do you for your trainees also, is there a mental conditioning that you work on, mental aspects of training? उसके बारे में कुछ बता सकते हो? यस यस, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉमरेड्स मेंटल गेम ही है। आपका 70% मेंटल है, 30% आपका बॉडी है। बिकॉज आफ्टर 50 किलोमीटर बॉडी बोलता है गिव इट अप, बॉडी आपका साथ छोड़ देता है। ये आपका दिमाग ही है, ये आपका माइंड ही है जो आपको आगे बढ़ने देता है। तो हम स्पेशली क्या करते हैं, रनर्स को हम पहले एक मीटिंग करते हैं, जो भी कॉमरेड्स कर रहे हैं हम उनके फैमिली को बुलाते हैं, ये फैमिली का एक गेट टुगेदर करते हैं। बिकॉज इसमें फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आपसे कॉमरेड्स नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनके फैमिली को बुलाते हैं और उनकी फैमिली से, हम उनके वाइफ से, उनके हस्बैंड से, उनके बच्चों से बात करते हैं और बोलते हैं देखिए आपके डैडी ये कुछ काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, ये छोटा मोटा जर्नी नहीं है, 3 मंथ्स का जर्नी है, आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे क्या। हम उनसे वचन लेते हैं कि आपको उनको सपोर्ट करना है और उनको मेंटली फ्री देना है। बिकॉज अगर वो बंदा रात को घर में झगड़ा करके सोएगा, सुबह लॉन्ग रन को नहीं आ सकता है। तो वो एक नॉर्मल मेंटली हम लोगों ने उसको फैमिली की तरफ से रिलीव कर दिया। सेकेंड चीज होता है आपको रन्स कराना। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है आपको, नाइट्स को 6 आवर्स के रन कंडक्ट करना। 6 आवर्स रन हो गए, 8 आवर्स नाइट रन हो गए, जो हम बेसिकली लॉन्ग रन में करते हैं। हमारा जो ग्रुप लॉन्ग रन भी होता है, तो उससे आप रात को भागते जब है, आपको अंधेरे के डर आपको निकाल जाता है। एक आपने वो डर को निकाल दिया। अब अकेले भागने का आपको एक्सपीरियंस होता है। कंडीशंस अलग रहते हैं, कभी आप सतारा भाग रहे हैं, कभी लोनावाला भाग रहे हैं, कभी बीएनटी भाग रहे हैं, कभी थाने भाग रहे हैं। डिफरेंट टेरेन पे आपको अकेले कभी कभी ग्रुप रन भी करना है और अकेले भी रन करना है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ग्रुप के साथ ही भाग रहे हैं। बिकॉज कॉमरेड जर्नी में आपके साथ कोई होने वाला नहीं है। स्टार्ट सब करते हैं, बीच में अपना अपना सब निकल जाते हैं।
तो मैं ट्रेनिंग सब साथ में करना है। यू मेक अ पार्टनर, 2 लोगों का एक पार्टनर बना दो कि भाई कॉमरेड्स तक तुम मेरे साथ रहो, कॉमरेड्स डे के दिन अलग भागना। तो एक जो बंदा स्लो पड़ता है तो हम एक टीम बना देते हैं, हम लोग 2-2 लोगों का टीम बनाते हैं कि भाई इसके साथ आप रन करो। और उसको मेंटली अगर ये बंदा लूज है तो हम स्ट्रांग माइंड वाले को डालते हैं, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बन सके। तो ऐसे करके और 2-3 हम सेशन रखते हैं, ऐसे अटेंड करते हैं, थोड़ा मेंटली स्ट्रांगनेस के लिए थोड़ा एक सेशन रखते हैं स्पेशली। तो वो बहुत बड़ा सेशन है, 2 घंटे का सेशन रहता है। मोटिवेशनल स्पीकर हम बुलाते हैं थोड़ा उसमें, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। और दूसरा हम बताते हैं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे। यू आर नॉट अ सतीश ग्रुप, अमित ग्रुप, ना स्टाइलर्स, ना समथिंग समथिंग ग्रुप, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो जब वो इंडिया का लोगो दिल में लग जाता है ना, तो एक अलग अमित कुमार, एक अलग कश्यप मोदी, एक अलग सतीश विलन बाहर आता है। तो वो फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी Correct. जगह अगर आप ओलंपिक जाना चाहते हैं, आप कॉमनवेल्थ जाएंगे, आपको सबको मौका नहीं मिलता है। मगर इंडिया के लोगो पहन के आप जब यहाँ भागते हैं, रोड में बुलाते हैं, आपको कमान अमित कुमार बोल के नहीं बुलाता है, कमान इंडिया बोलते हैं। तो वो जो जज्बा जुनून, वो जो साउंड, वो जो वीडियोस हम दिखाते हैं रनर्स को, उनसे उनके दिमाग में खलबली मच जाती है कि यार ये बंदा कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। तो वो जज्बा मैं बोलता हूँ, हमेशा ये याद रखो कि आपको नेशनल फ्लैग को लास्ट में निकालना है और स्टेडियम के अंदर रन करना है। ये माइंड में रखना, आप अपने आप को ट्रेनिंग करना। करेक्ट करेक्ट। सो ये एक एक्सीलेंट आइडिया है अमित के। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के दौरान रनर्स के फैमिलीज को मिल लो, एंड सो दैट एवरीबडी नोज एंड अंडरस्टैंड्स कॉमरेड्स ट्रेनिंग क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो ये बहुत अच्छा है। it is a good idea and I think a good practice to have, so that the family is also part of the journey. It's not that the runner अकेला ही train कर रहा है, full support is there from the family, and of course family support is needed. उसके बिना तो हो नहीं पाएगा। Without family support, we can't do camp. Correct. And also the point about bringing 2-3 runners together in a group, कि through the training journey आप लोग साथ में train करो, because similar pace है, so एक दूसरे को help करके a stronger mind person can help a not so strong minded person, which is a very also a great idea, I think. And it's something that all of us can learn from. How do you involve the family, and especially how do you make smaller groups and kind of train together. So that's a brilliant idea, Amit. Thank you. Coming to nutrition, right? Yes. Food, nutrition. Do you also believe that it is important, very important, and how do you kind of advise your runners on it? Do you guys have a nutrition within your fold and consult a nutritionist, or you leave everybody to do their own? क्या करते हो आप? यस न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना न्यूट्रिशन के आप खाली रन कर रहे हो, आपका बॉडी खत्म हो जाएगी। न्यूट्रिशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपको पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करना है। और जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है उनसे ही आपको लेना है। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप के लिए हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर ने हमने अपॉइंट किया है, सी इज सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो वो हमारा पूरा ग्रुप का जितने भी कॉमरेड्स है प्लस फुल मैराथनर्स है, हम लोग उनसे न्यूट्रिशन प्लान लेते हैं। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप खाली रन कर रहे हो, आपके मसल्स को कितना क्या पावर चाहिए, क्या फूड चाहिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आई एम नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो जो है सर्टिफाइड है, जो कोर्स कर चुके हैं, आप स्पेशली कॉमरेड्स टाइम के लिए आप 3 महीने के लिए उनसे गाइड ले लीजिए। अगर आप 3 महीना लेते हैं, आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। बहुत माई सजेशन है, जब 3 महीने के लिए मिनिमम आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, डाइट पे ध्यान देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। So recovery through the runs, ensuring that runs में you don't feel hungry, you feel stronger through the runs. All those things वो सब जरूरी है and important है, and that is also an important part of the training plan, right? While mileage, strength training, mental strength, nutrition, all these are important parts, right? So as while you are training, ये सब चीज पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. Only mileage is necessary, but that's not the only thing. All other aspects are important. They will help you to run a better comrades. They will help you to run a stronger comrades, right? So now that itna experience hai India mein about comrades, and that experience is openly shared, I think all of us should learn from that, and so that we all have a better comrades, right? So nutrition is important. That is what Amit is saying.
So Amit, you tell me when you are training Yes. your trainees, right? Are there? I'm sure there are times where April, May में लोगों को कुछ यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, ये इंजरी हो रहा है, वो इंजरी हो रहा है, वो जनरली होता है. How do you manage that? How do you address that with your trainings? ओके, इंजरी एक्चुअली इंजरी सबसे पहले होता है क्योंकि आप अगर ओवरलोड लोड डाल रहे हो बॉडी को, अपने ट्रेनिंग बॉडी की कैपेसिटी से बाहर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूछिए कि आपका बॉडी कितना ट्रेनिंग लोड लेने के काबिल है. आपको उतना ही ट्रेनिंग लेना है. ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक है, बिकॉज रिकवरी बहुत स्लो होगा, और रिकवरी स्लो होगा तो फिर आपका नेक्स्ट टर्न नहीं हो पाएगा. तो आपको अपना पर्सनलाइज प्लान करना है. वही बात है कि हर बॉडी अलग है, तो आपको अलग अलग ट्रेनिंग प्लान से अगेन आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए. ऐसे अंधाधुंध मेरे को हर सप्ताह 100 किलोमीटर भागना है, मैं रात को सोया नहीं हूँ, मेरे को सुबह भागना नहीं, रॉन्ग. आपको प्रॉपर नींद चाहिए रन के पहले. जैसे मैंने आगे बोला कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, नींद पूरा करना है, ट्रैवलिंग नहीं करना है, बहुत कुछ मायने रखता है. तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मार्च अप्रैल में ज्यादा रन कर लिया और मई में इंजरी हो गया. ये भी इससे बहुत सारे केसेस उससे हुए हैं. तो आपको प्रॉपर प्लानिंग से ही ट्रेनिंग करना है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है. बिकॉज जो कॉमरेड्स वाले जो है उनका टैपरिंग वीक पता है आपको कि मई 15 से उनका टैपरिंग वीक चालू हो जाता है, 3 to 4 months पहले. बिकॉज मेरे साउथ अफ्रीका में क्लाइंट्स है, दे आर डूइंग कॉमरेड्स, तो सर हमारा तो टैपिंग स्टार्ट हो गया 1 महीना पहले. मैं बोला हमारा तभी तक लॉकडाउन चल ही रहा है. तो सबका प्लान अलग है, बॉडी अलग है. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस में आप लोग लीजिए और बॉडी को ओवर ट्रेनिंग मत लीजिए. अगर आपको लिसन टू योर बॉडी, अपने बॉडी को सुनिए. अगर आपका बॉडी कुछ बोलता है कि भाई कुछ साइंस दे रहा है, कुछ सिग्नल दे रहा है, तो सिग्नल को समझिए. अपने कोच से, अपने मेंटर से, अपने जो गाइडेंस उनसे बात कीजिए, सर मेरा ये पेन हो रहा है. वो पेन क्यों हो रहा है उस चीज को जानिए. आप पेन हो रहा है, मैं नहीं चलो लॉन्ग रन करता हूँ, नहीं, उस वक्त स्टॉप हो जाइए. आप पेन आना नहीं चाहिए. पेन आता तभी जब आप कुछ गलत करते हैं. रनिंग ऐसा एक चीज है जिसका आपको पेन नहीं आना चाहिए. अगर आपको पेन आ रहा है, नी पेन हो रहा है, तो नी पेन क्यों आ रहा है उसके पीछे सर्च मारिए. आपका विटामिन D3 कम होगा, आपका कैल्शियम कम होगा, आपको थकावट हो रही है तो आपका विटामिन B12 कम होगा, आपको हील के पास दुख रहा है तो आपका यूरिक एसिड ज्यादा होगा. ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर कोचेस को पता होना चाहिए कि भाई यूरिक एसिड बॉडी में कितना होना चाहिए, विटामिन D3 कितना होना चाहिए. जब मैंने अभी I have just completed my certified coach in SAI, Sports Authority of India, and I have completed my AFI level 1 coach course also. तब हमको बताया गया, नेशनल कोचों ने बताया कि हर एक एथलीट को, हर एक कोच को मालूम होना चाहिए. मैं बहुत सारे रनर से मिला हूँ, उनको पता ही नहीं उनका D3 कितना है, उनका कैल्शियम लेवल कितना है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है. रनर्स के लिए सब चीज जाना जरूरी है. अगर इंटरनल पार्ट आपका कमजोरी होगा तो आपको इंजरी होगा. आपको अपने इंटरनल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपको एक्सटर्नल पार्ट अपने कोच से स्ट्रॉन्ग कराना है, और आपको अकॉर्डिंग टू बॉडी ही ट्रेनिंग करना है. ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं करना है. दिस इज माई पर्सनल सजेशन. प्लीज, आपको बहुत गंदा इंजरी हो जाएगा, इंजरी से बचना है. और कॉमरेज तो हमेशा होगा, लेकिन इंजरी हो गया ना तो आपको 3 साल पीछे चल जाएंगे आपको. करेक्ट. सो अमित, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो बताया कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, राइट. सो अगर अमित हफ्ते में 90 भाग सकता है तो जरूरी नहीं है कश्यप भी भाग सकता है. कश्यप का ट्रेनिंग प्लान उसका बॉडी के हिसाब से, उसका कैपेसिटी के हिसाब से, और वो पूरे दिन क्या करता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, व्हाट एल्स ही डूइंग, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. या, लिसन टू योर बॉडी. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, उनको उसको एड्रेस करो. एक ज्यादा इग्नोर मत करो उन चीजों को, राइट. एंड एज अमित सेड के D3, यूरिक एसिड, कैल्शियम लेवल्स, ऑल दोस थिंग्स आर स्लोली आर इम्पोर्टेंट. सो ये सब चीज का अवेयरनेस, अभी तो बहुत सारा अवेयरनेस है, बहुत सारा चीज अवेलेबल है जानने के लिए. तो वो सब चीज जानिए. लेट अस understand this, know and understand this finer aspects of comrades also, so that we all have a, as I said, a better run, a stronger run, right, as an Indian contingent. So I'm glad Amit आपने ये बताया कि tell me something. Another thing I wanted on this part is sleep, right. Generally क्या होता है जब हम ज्यादा ट्रेन करते हैं, वो the only thing that gets compromised is sleep, unfortunately, right. Because लाइफ में इट इज डिफिकल्ट कि अगर मैं रोज पहले 10 बजे सोता था तो कॉमरेड शुरू हो गया तो मैं 8:30 बजे सो जाऊं, तो हो नहीं पाता.
नहीं हो पाता है। And especially when we are all working and we come home at 7, 7:38, it's just impossible. At least I have never been able to sleep at 8:30. But how do we then manage that? Because I believe I have experienced sleep is important for recovery also. It's for Yes, everything, yes. sleep is important, definitely for recovery. So, how do you ensure that you and your trainees also focus on getting the adequate sleep? यस एग्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप, बिकॉज अगर आप नहीं सोएंगे तो सुबह आपका रन नहीं हो पाएगा। और बहुत से रनर्स को ही प्रॉब्लम होता है कि वो देर 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, उनको डीप स्लीप नहीं आता है। तो इसके लिए आपको टाइम पे आपको डिनर होना चाहिए, आपको सब होना चाहिए। हम लोग स्पेशली मैं सजेस्ट करता हूँ, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑयल आता है, हाँ, मैं बाद में फोटो डाल दूंगा। ये मैग्नीशियम ऑयल, अगर आप जिनको स्लीपिंग का इश्यू है तो आप इसको अप्लाई करके बॉडी में सोएंगे ना, तो अब एक अच्छा नींद आता है। बिकॉज लास्ट 3 to 4 years हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, और जैसे लगाने के बाद एक अच्छी नींद आती है। बिकॉज मैग्नीशियम बॉडी में जाने के बाद ना आपको आपका स्ट्रेस लेवल आपको पूरा रिलीव कर देता है, और आपको जो आपको क्रैम्पिंग स्पैम्स भी पूरा रिलीज हो जाता है। तो ये मैं ऑयल में फोटो डाल दूंगा। correct. You guys have a look at that, whatever Amit is putting as a magnesium oil picture, and then do your own consultancy and research and then use it. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमित ने मैं बताया अगेन है, बोलूंगा इसलिए मैन मैंने टू मैन, यूज कर लिया, फिर ये मुझे एवरीबॉडी हो गया, बॉडी सबका अलग ऐसा है मत कीजिए। कि मेरे जो, हाँ यस यस, तो एक्चुअली आपको स्लीपिंग सोना का आपको हैबिट डालना है, बिकॉज मिनिमम 5 hours डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बीइंग अल्ट्रा रनर हम बोलते हैं 3 hours नींद मिल गया तो बहुत है, बट लेकिन उसमें परफॉर्मेंस में अंतर पड़ता है। मिनिमम आपको 5 to 6 hours का स्लीप चाहिए। तो 3 महीने के लिए थोड़ा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जो आप टाइम आपका स्लीपिंग टाइम में 1 घंटा पहले आपको सोना पड़ेगा। अगेन मैं क्या बोला, ये कॉमरेस एक दिन का जर्नी नहीं है, कॉमरेस 120 दिन 100 days का ट्रेनिंग का जर्नी है। तो आपको ये 100 days बहुत दिन कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा। ये जो 3 months है आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। आपको लेट नाइट पार्टीज अवॉइड करने हैं, आउटसाइड ट्रिप अवॉइड करने हैं, तब जाके आपको कॉमरेस का थप्पा लेके घूम सकते हो कि हाँ मैं कॉमरेस फिनिशर। तो स्लीपिंग तभी आपका हो पाएगा जब आप लेट नाइट पार्टी अवॉइड करेंगे, लेट नाइट जो आप बाहर घूमने जाते हो उसको अवॉइड करेंगे। फैमिली को बोलिए जस्ट गिव मी 3 months, या हम तो क्या करते हैं फैमिली को फरवरी के पहले घुमा के लेके आ जाते हैं एक अच्छा ट्रिप मार के, ताकि फैमिली 3 महीने तक कुछ ना करे। एक अच्छा आइडिया है। Correct. देन I 3 महीने agree. वो लोग 3 महीना चुपचाप रहते हैं, वो लोग साइलेंट रहते हैं, बोलते हैं आप अपना ट्रेनिंग करो, और फैमिली हमारे इसको सपोर्ट करती है। सब रनर्स की फैमिली सपोर्ट करते हैं। जून तक कोई चूचा नहीं करता है, हम आराम से 9:30 9 बजे तक सो जाते हैं, और 3:30 4 o'clock उठ जाते हैं। तो Correct. अगेन फैमिली इंपॉर्टेंट है, सोने के लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको घर में स्ट्रेस रहेगा, ऑफिस में स्ट्रेस रहेगा, अपने बॉस को अपने ऑफिस में बताइए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, ये कॉमरेस होता क्या है, उनको उसके यूट्यूब का वीडियो सेंड कीजिए अपने बॉसेस को, अपने जो सीनियर है एचआर्स को, ताकि उनको समझे कि ये बंदा कुछ नया कुछ करने जा रहा है। तब वो भी आपको थोड़ा कम परेशान करेंगे। नहीं करेंगे, परेशान तो सब करेंगे, कोई नहीं चाहता कि आप अपने नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करें। परेशान तो आपको करेंगे, लेकिन उस परेशानी को कैसे आप हैंडल करते हो, ये आपका टैलेंट है। ये मैन टू मैन डिपेंड करता है, हाउ यू मैनेज। तो आपको अपने खुद से मैनेज करना ही है। करेक्ट। सो अमित, अभी हमने काफी बात किया रन के पहले का, ट्रेनिंग, माइलेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप एक्सेट्रा। अब लेट अस टॉक अबाउट द रन, राइट? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? व्हाट डू यू थिंक यस, starting from Saturday, right? The day before the run and through the course of the run. Let's talk a bit about that. What is the Okay. thought process and what do you advise your team members once we are all in Durban? ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली हमारी जो भी एक्टिविटी रहती है हम लोग फ्राइडे तक ही खत्म कर लेते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम लास्ट टू लास्ट आप थर्सडे टर्बन पहुंच जाए। लास्ट टू लास्ट वेंसडे किया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज थर्सडे इवनिंग तक आपको पहुंचना ही है, ताकि आपको बॉडी थोड़ा एक्टिवाइज भी हो जाए। फ्राइडे आपको जो भी बिप कलेक्शन करना है, जो भी घूमना है, सब घूम लीजिए। शनिवार को आपको कोई एक्टिविटी नहीं करना है, बिप कलेक्शन में जाकर टाइम पास नहीं करना है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। आपको बॉडी को कंप्लीट रेस्ट करना है, और अर्ली डिनर जैसा हम बोलते हैं 6:30 को 7 o'clock को डिनर करके आपको सो जाना है। फिर नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में आपके कोचेस आपको बताएंगे, या फिर आपके जो सीनियर से हाउ यू मैनेज। आपको क्लाइमेट ठंडा रहेगा तो आपको वहाँ पे जैकेट्स, हम क्या करते हैं जो पुराने जैकेट्स होते हैं इंडिया के, जो हम थ्रो करने वाले थे उसको लेके जाते हैं, हम वो पहनते हैं।
यूज्ड या फिर जो पूरे पुराने हैंड ग्लव्स रहते हैं या पुराने टोपी रहते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग लाइन में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। अगर उस टाइम पे आप हीरो बन के चले गए, फिर आपको वहीं पे आपका 1 घंटा खत्म है, आपको फुस हो जाएंगे। तो बॉडी को वार्म रखना है, वार्म अप करना है और प्रॉपर टाइम पे लाइनअप में घुस जाना है, बिकॉज लाइनअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक मिनट कॉम्रेड्स का बहुत बड़े मायने रखता है। तो बॉडी को आप वार्म रखिए। और अभी जैसे इस साल अपरन है, तो आपको वार्म रख के ही बॉडी को चलना है। स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा अच्छा खासा अपील मिलेगा। आप लोग सबको पास स्पोर्ट्स पता ही है, तो स्टार्टिंग से ही ज्यादा पुश नहीं करना है। स्टार्ट विथ इजी इजी इजी। हाफ वे 34-35 किलोमीटर होने के बाद फिर अपने पेस को इंक्रीज कीजिए। अगर आपने शुरू से पेस बढ़ाया तो आगे जाके आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अपरन टोटली डिफरेंट है। बिकॉज आई फिनिश्ड माई अपरन इन 8:53। आई वाज रनिंग स्टार्टिंग वेरी स्लो, वेरी मच स्लो. When I just after 83 kilometer, then I started I saw the poly shots and something. Then I ran 5:23 pace. Wow. And then I saw many runners from India, Ramashish, Deepak Budhrani, Dr. Asnath. Then I realized, yeah, I'm doing very good. Then again I'm doing, मैंने अपना पेस बढ़ाया और I finished in 8:53. And 2018 I was the second Indian fastest runner. Wow. after Deepak Bandre. Yeah. तो ये भी एक जर्नी है। तो आप कोर्स को पढ़िए। ऐसा कोई इजी कोर्स है, ऐसा कोई इससे भी डिफिकल्ट कोर्स हमारे इंडिया में है, लेकिन लोग एंजाइटी में थोड़ा सा हड़बड़ी कर देते हैं। शुरू में फास्ट मार दिया, बॉडी गर्म में चल नहीं। आपको प्लान करना है, वो रूट मैप को देखिए कहाँ पे कैसे चलना है। अपने रेस को पूरा डिवाइड कीजिए। 90 किलोमीटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 30-30-30 इस बार आपको 87 किलोमीटर है, तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट को कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, आपका पूरा ट्रेनिंग प्लान कैसा हो रहा है 3 मंथ्स का, उस बेस पे आपको टारगेट सेट करना है। बी अ रियलिस्टिक टारगेट, और टारगेट को अचीव करना है। Yeah. No, a very good और point. अगेन बोला, हड़बड़ी नहीं करना, प्रॉपर आपको। Yeah, very good point, अमित के प्लान कीजिए रेस को, so and work, stay with the plan, right? So the point being that आप ट्रेनिंग करते हो Yes. फेब से लेके मई तक, तब तक आपको एक अंदाजा आ जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में मैं क्या ब्रॉडली मैनेज कर सकता हूँ, क्या पेस मैनेज कर सकता हूँ। मई तक एक अंदाजा आ जाता है। एंड बॉम्बे एंड इंडिया वेदर इज अ लिटिल हार्डर देन द वेदर देयर। उधर वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, सो यू विल नॉट स्वेट मच. The weather also is far pleasant and cooler than what it is in Bombay, or in India for that matter. So weather is to your advantage. We should use the weather to our advantage. But weather अच्छा है तो doesn't mean कि मैं पहले ही 5th gear में गाड़ी चलाऊं and then बाद में struggle करूं. We have to be careful about that. As Amit said, right, race को plan कीजिए. So have a plan and stick to a plan. Right. So the only input that I would like to give here is the way I do is I every cutoff, there are 6 cutoffs, right? I target to reach every cutoff at a particular time, and I try to stick to that, and so that it ensures that I'm not running very fast. मैं ज़्यादा fast नहीं भाग रहा हूँ. And then after the 5th cutoff, last 15-20 kilometers, अगर ज़्यादा जान बची है और लग रहा है कि I won't cramp, I won't hurt myself, then I will try to push a little to improve, probably to improve on the timing. उसका भी जरूरी, it's not that it is required, right? Finally, but it is important that you stick to your plan. अगर आपने halfway decide किया है मैं 5 घंटे में करूंगा फॉर एग्जांपल, या 5:30 में करूंगा, so 5:30 को आप 4:45 मत कीजिए प्लीज, बिकॉज देन आप बहुत फास्ट भाग रहे हो उसका मतलब, एंड देन यू विल स्ट्रगल इन द एंड. Do not do that. In a full marathon, which is only 42 kilometers, अगर आप 30, 32, 35 पे बहुत स्ट्रगल करते हो तो भी चल चल के खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट का फर्क पड़ेगा रेस में. बट इन अ comrades, if you start struggling at 55, 60, 65, there is 30 kilometers to go, and then it is very likely that आप अपना रेस खराब कर दोगे. So do not overdo. Stick to a plan. Have a plan. Stick to a plan and run your race as per that plan, right? Which is, I think, the key for comrades. And then, of course, you will meet so many runners on the race, through the Indian runners, non-Indian runners. The support is just outstanding. Amit जैसे बता रहा था, full 90 kilometers, there's so much support, and because हम सारे लोग इंडिया टी-शर्ट पहनते हैं,
there is just too much cheering and support for India, right? Because comrade Durban has a lot of Indian diaspora, बहुत Indians है वहाँ पर, तो बहुत strong feeling आता है, लोग चिल्लाते हैं तो support करते हैं, वो energy भी soak in करना है, right? So, and then of course when you finish in the stadium, a lot of us now carry the Indian flag. It's an outstanding feeling, and I'm sure एक बार experience करोगे तो बार बार करने का जी चाहेगा. So अमित, अभी क्या करते हैं, we'll just open up the house for questions. जिनको भी जो क्वेश्चन पूछना है चैट में डाल दीजिए. I will try and read it for everyone, so that if there are any questions that people want to ask, बिंदास पूछिए, कोई टेंशन नहीं है. We are all an extended family. So जो पूछना है पूछ लीजिए. And then of course we can get Amit to answer all of that. Sure. Right. Amit, till people put up some question, let me ask you something. Yeah, please. कि अभी मतलब how do you on the race day, right? On the race day, what is the kind of fueling you think about? क्या कैरी करते हो, क्या खाते हो, और क्या एडवाइस करते हो अपने ट्रेनिंग्स को? यस यस, अगर आप फ्यूलिंग बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग मैं पर्सनली यूज करता हूँ जू जेल. गू जेल, इट्स 7 to 8 गू जेल and plus 5 to 6 salt caps, and in between after 50 kilometers I'm taking one sandwich. Okay. जो भी रोड में मिल जाए after 50 kilometers, एक sandwich and 2-3 dates. That's it. Understood. So you take 7-8 gels, right? Yes. So the point here, guys, is that जो भी आपको करना है ना, आप अपने लॉन्ग रन्स में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको ट्राई करो. डू नॉट टेक जेल्स डायरेक्टली ऑन द रेस डे. जो भी आपका प्लान है, सॉल्ट टैब्स है, जेल्स है, डेट्स है, उन सब चीजों को ट्रेनिंग प्लान में लॉन्ग रन्स में ट्राई करो, सो दैट आपको पता चलेगा व्हाट हेल्प्स यू, व्हाट डज नॉट हेल्प यू, and accordingly you can then decide what to do. But through the race, fueling is important. You have to eat something, otherwise 50-60 किलोमीटर के बाद स्ट्रगल करोगे, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी. वेदर जेल आपको सूट करता है, डेट्स सूट करते हैं, whatever suits you, उधर आपको बनानास मिलेंगे, पोटैटोस मिलेगा, of course water and electrolytes, energy drink मिलेगा, and one coke मिलेगा, आइसक्रीम सोडा. So a lot of things are important, will be there. There are 42 water points. वहां बहुत कुछ मिलेगा, बट खजूर, डेट्स नहीं मिलेंगे, जेल्स नहीं मिलेगा, वो आपको अपना खुद का कैरी करना होगा. So keep that in mind. I mean, there's another question. Do you tend to maintain a steady pace all through and assume that आप लास्ट में तो स्लो हो ही जाओगे? यस नहीं, ऐसा होता है, एग्री, लास्ट में स्लो होना ही है. I started with my इस समय प्लानिंग है सब नहीं. Started with 5, 10, 5 easy, because 5 is my easy pace in long runs. Then after 60-70 kilometers आपके मसल्स जब टायर्ड हो जाते हैं, आपका पेस 6 में ड्रॉप होता ही है. तो ओवरऑल 555, 554 पेस में आप सबलाइन कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में मेरा प्लान रहता है कि मैं स्टार्टिंग में मेरी बॉडी सपोर्ट करती है तो मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ. आफ्टर 60-70 किलोमीटर, लास्ट 20 किलोमीटर थोड़ा इजी करता हूँ. लास्ट 2-3 किलोमीटर अगेन मैं फास्ट करता हूँ. ये अगेन मैं बोला कि ये मैन टू मैन डिपेंड करता है. हाउ यू प्लान, आपको ट्रेनिंग आपने कैसा प्लान किया, आप ट्रेनिंग रन कैसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग में क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा जेल ले रहे हैं, कौन सा जूता पहन रहे हैं, सब आपको ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना है. ये एवरीबॉडी बॉडी अलग है, तो मेरा स्ट्रेटजी अलग रहेगा. कुछ रनर्स क्या करते हैं, हमारे पहले स्टार्टिंग में स्लो भागते हैं, बाद में पिकअप करते हैं. तो सबके बॉडी के हिसाब से आपका कोच, आपका जो गाइडर, आपका जो मोटिवेटर है, आपका जो मेंटर, वो आपका रेस प्लान फिक्स कर सकता है. Yes, agreed. So Amit, there's another question. क्रैम्प्स आते हैं तो क्या सजेस्ट करते हो ड्यूरिंग द रेस? एक्चुअली क्रैम्प्स तो आना ही नहीं चाहिए सबसे पहले. उसके लिए आपको एडवांस में ही लोग क्या करते हैं ना, क्रैम्प्स आने के बाद जेल को लेते हैं, वो बहुत गलत है. आपने अगर ट्रेनिंग में प्रॉपर प्लानिंग किया कि मेरे को क्रैम्प आने के पहले कितना मिनट, आपको एक साइन आता है
क्रैम्प ऐसा अचानक नहीं आता है, क्रैम्प आ गया मैं गिर गया, आपको साइनेज मिलेगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, हल्का सा कुछ ऐसा चूचा कर रहा है, तो आपको उसके लिए आपको जो एक टाइम बॉन्ड चाहिए कि मेरे को इतना किलोमीटर पे जेल लेना ही है, मेरे को सॉल्ट कैप लेना ही है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लाइमेट ठंडा है तो पानी नहीं पीते हैं, तो 10 किलोमीटर बिना जेल के निकाल देते हैं, बाद में देख लेंगे। बट आप जब जेल लेते हो, जेल ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपने अभी लिया आपको तुरंत ठीक हो गए, उसको टाइम लगता है, तो बॉडी में जाता है, घुलता है, ब्लड में मिक्स, तो आपको थोड़ा टाइम के बाद ही आप काम करते हैं। इफ यू टेकिंग ए जेल आफ्टर 10 मिनट्स इट विल वर्क। लोग क्या करते हैं, मेरा 90 किलोमीटर है, मैं 89 किलोमीटर पे जेल मार लूंगा, नहीं होता है। आपको 98 आपको 85 में मारना है, देन वर्क इन 87 किलोमीटर। तो उसके लिए आपको क्रैम्प क्यों आ रहा है, आपको ट्रेनिंग में आप फाइंड आउट कीजिए। ट्रेनिंग में क्यों, आपने अगेन बात कीजिए कोचेस से कि भाई मेरे को कैसे क्रैम्प आ रहा है, तो कोच आपको बताएंगे आपको सॉल्ट की आपकी कमी हो रही है, नंबर 1 आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, आप जेल प्रॉपर नहीं ले रहे हैं कुछ, या फिर आप वाटर इंटेक कम कर रहे हैं, या फिर वाटर इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं। और अगर आप प्रॉपर अगर वाटर इंटेक करेंगे, सॉल्ट कैप्स लेंगे, हम लोग क्या करते हैं आजकल खजूर के अंदर को, खजूर अच्छा और बड़ा वाला खजूर लेने का, उसके अंदर वो जो बिया को निकाल के उसमें सॉल्ट डाल देने का, वेरी गुड, हम्म आपको जेल का भी काम करते हैं। हम्म खजूर के अंदर सॉल्ट डाल के उसका पैकेट बना के ना, प्लास्टिक रैपर बना के रखिए और वो ले लीजिए, तो आपको इंटरेस्टिंग। खजूर प्लस सॉल्ट दोनों एक साथ आ गया। Oh, that's an तो interesting idea, guys. ये हम लोग, मैंने एक देसी तरीका अपने रनर्स को बोला है, अगर जेल खत्म हो गया तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। Yeah, यस यस। good idea. ठीक है, fair. अमित, next another question कि जब ये TUM होता है, कास अल्ट्रा होता है, जो बेसिकली अपने लॉन्ग रन होते हैं, राइट? The question is, how do we approach these runs? Should we go all out or we should go conservatively to ensure that we avoid injuries? Is the question from Anand for all of us, for you. वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो कास अल्ट्रा हो रहा है या फिर कोई भी आप रन कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो आपको पूरा फुल फोर्स में नहीं करना है, आपको 70% ही अपने मसल्स को, 70% आपका इन्वेस्ट लेवल पे आपको रन करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को कास अल्ट्रा में मेरे को पोडियम आ गया तो मैं कॉम्प्लेक्स में सब 1 या फिर सब 10 मार दूंगा, रॉन्ग। आपको इसको एज अ लॉन्ग रन लेना है, और अगर आप इवेंट कर रहे हैं तो थोड़ा आप 10% अपने आप को पुश कर सकते हैं। स्पेशली इंडिया, बिफोर कांग्रेस आपको कोई बड़ा ऐसा काम नहीं करना है, अपने इवेंट को ज्यादा पुश नहीं करना है, हर इवेंट को इजी एज ए लॉन्ग रन लेना है। कास अल्ट्रा को भी आपको लॉन्ग रन ही लेना है, ऐसा नहीं कि कास अल्ट्रा है तो मैं अपना बेस्ट करूंगा तो मेरा कॉम्रेस में अच्छा, नहीं। कास अल्ट्रा का ट्रेनर अलग है, लोनावाला का ट्रेनर अलग है, कॉम्रेस का ट्रेनर अलग है, माहौल अलग है, क्लाइमेट अलग है, एवरीथिंग विल डिफरेंट। तो आपको कास अल्ट्रा को इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कास अल्ट्रा ही लेना है, उसको ईजी करो, डोंट पुश योरसेल्फ। आप देखो कि आप कितने पानी में हो, आपने कितना ट्रेनिंग किया है, और आपको कितना ट्रेनिंग की जरूरत है। आप खुद आइडिया लगा लो कि भाई मेरा इतना टाइम में हो रहा है, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि मेरा इतना टाइम में हो रहा है तो मैं इतने टाइम में फिनिश कर सकता हूँ। वो बेसिक आइडिया के लिए आपको रन करना है, ये नहीं कि मेरे को आज मुझे जाके आज 4 कर दूं, मैं आज ही सब रन कर दूं, नहीं। चांस ऑफ इंजरी, डोंट गेट इंजर्ड। आपको इजी करना है वो कास अल्ट्रा को, या फिर कोई भी रन होता है, या फिर कलिम्पोंग अल्ट्रा हो, हर रन को आपको इजी लेना है, बिकॉज आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। हम जब कास अल्ट्रा नहीं था तो हम लॉन्ग रन करते थे ना, मार्च अप्रैल में हमारी टीम, कॉमर्स के जितने भी टीम लोग लॉन्ग रन करते हैं, 50, 56, 65। Correct. I think just to add here, right? See, yeah, Amit, we are losing you. Amit, we can't hear you. So I'll just Yes. jump in. Okay, comrades, comrades and training for comrades, right, is like a test match. So to win a test match, you can't win it Yes, I largely in agree, I one agree. session, right? You have to play good cricket for 3 to 4 full days, which is what exactly comrades is all about. You have to train well, you have to be on your feet for 4 months, and on the race day also you have to do your best. बट अगर आप बहुत एक्स्ट्रा कर दोगे किसी एक रेस में, किसी एक रन में, एंड देन यू गेट हर्ट, इंजर्ड, डोंट डू दैट। कॉमरेड्स इज अबाउट बीइंग लंबी रेस का घोड़ा, and that is what you should think, right? If your objective is comrades, focus on comrades. Use Tata Ultra, Cast Ultra, or any other run for that matter only as a training run for that race, and learn from that race, learn from what your body goes through, learn from where you get tired, when you get tired, so that in the next long run you work on that and improve, right? That is very very important. अपने मिस्टेक से आप सीखिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। Correct.
another question is very difficult to find hills within Mumbai. So do you guys? So I think this question is more like आप जहाँ रहते हो वहाँ आप slopes और hills ढूंढ लो. Otherwise क्या करोगे, right? So I stay in Vadala, तो हम बैंड्रा जाते हैं weekdays में, या so Saturday Sunday हम तीन बत्ती, मलबार हिल वो एरिया में जाते हैं, वहां पे हम slopes करते हैं. That is all that we do, right? People who stay in Navi Mumbai, there are a lot more hills there, that side. People who stay in Thane, there are a lot more hills that side. BNP, बोरीवली कांदीवली वाले BNP जाते हैं. So सबके एरिया के आसपास कुछ ना कुछ hills and slopes है. So सब वही वैसे ही ट्रेन करते हैं. I will try and put whatever we are doing on a Sunday on the group. Whoever can join, please feel free to join. Most of the times on Sundays, we train near Hanging Garden, Teen Batti, Malabar Hill, those slope areas. Pasik Hill. Pasik Hill. In Navi Mumbai, you will be Pasik Hill. Correct. Kharghar Hill. खारगर में Kharghar Hill. खारगर हिल है. I see very many comments. पड़ेगा आपको यार. Yeah, very What we important. can do, Amit, is just as when we are training on a Sunday, I will put on the chat कि हम यहाँ भाग रहे हैं Sunday को. Whoever wants to join can join. Similarly, you, because you have a larger training group, आप भी अगर हो सके तो इंडिया ग्रुप में डाल दो कि कल हम संडे है, लॉन्ग रन यहाँ कर रहे हैं. Yes. तो किसी को ज्वाइन करना है तो they can join, right? People who are Most solo welcome. runners or training alone, they can join. ठीक Good है, idea, तो very just good do idea. that. I will tell Girish also about it. Girish also has a group, Girish Bindra. Yes, yes. तो वो भी एक कर देगा. Even we'll tell, of course, tell Satish to do it. Yes, So yes. Satish also has a larger group, right? This is very good idea. तो जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, राइट? हाँ, इसमें है. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है. हाउ इजी और डिफिकल्ट इज अप रन वर्सेस डाउन रन? प्लीज आंसर. अप रन एंड डाउन रन, इट्स एक मिथ है. अप डाउन खाली नाम का ही चीज है. आप ऐसे फोकस मत कीजिए कि डाउन रन इजी है, अप रन टफ है. एज फॉर मी, अप रन इज इजी. एज फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम कॉमेंट कर रहे हैं, यू ट्राई अप रन, तो आप सक्सेस हो जाएंगे. बिकॉज इंजरी के चांसेस डाउन रन में 40% चांसेस होते हैं और अप रन में 20% होते हैं. तो अगर आपका क्वाड्स मसल स्ट्रांग है, आपके ग्लूट्स स्ट्रांग है, तो अप रन आपका इजी हो जाएगा. घबराइए मत. अप रन इज वेरी इजी. एक तो आपको 3 किलोमीटर कम का फायदा मिल रहा है. ये माइंड में डालिए कि आपको 3 किलोमीटर कम भागना है और आपके पास 30 मिनट आप सेव कर रहे हैं. दूसरा, अप रन नाम का ही अप रन है. कॉमरेड्स में you'll find a very up down. लोग समझते हैं कि अप मींस पूरा अप रहेगा, बाद में डाउन भी डाउन रहेगा. ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है. जिन्होंने बैक टू बैक किया उनको पता है कि अप रन डाउन रन नाम का अप रन है. इट्स अ कॉमरेड्स. आपको रूट को पूरा पढ़ना है और अपने आप को चैलेंजिंग बनाना है और आपको हर एक रूट में, हर एक टेरेन में प्रैक्टिस करना है. हाँ, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा कि अप रन में थोड़ा सा आपको, इफ यू वांट, आप सतारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सतारा में एक अच्छा अपील का पार्ट है. हम जो नीचे से ऊपर बेस करते हैं ना, तो मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ, मैं सतारा रनर्स के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ कि 1-2 रन वो लोग मार्च में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में, ऐसा कोई उनका तो अप्रैल में इवेंट है ही. मार्च में अगर वो लोग एक लॉन्ग रन अगर ऑर्गेनाइज कर सके हमारे लिए, तो हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. तो बाकी भी कॉमरेड्स में चाहता हूँ आप लोग ज्वाइन करो, ताकि वो जो आपका जो पूरा स्लोप है ना, उसमें आपको ट्रेनिंग करेंगे तो आपका एक बेनिफिटेड आइडिया पक्का होगा, बेनिफिट होगा. तो जैसे ही वो फाइनल होगा, मैं खुद ग्रुप में डाल दूंगा. आप सब आइए, हम सब मिलके ही रन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. Perfect, Amit. So do that. Let us do that across this 4-5 large groups. जहाँ भी हम लॉन्ग रन या संडे रन्स कर रहे हैं, just put it on the group so that everybody understands. So Ayaz, up run, down run, मेहनत उतनी ही लगती है, and both are equally easy. Let me put it that way. Both are equally easy. Just train as you're doing, and I'm sure we all will have a good run. Right? Yes. The other question, a bit technical. Acha, WhatsApp. Somebody is asking what is the WhatsApp number to join the group. Acha, just drop me a WhatsApp message because you have registered for Comrades. I will add you to the group. My phone number is 998-707-3562. 998-707-3562. Another question I have: would you recommend carbon fiber shoes for Comrades? I don't know how to answer that.
because I haven't used carbon Yes, fiber. Amit, up to if you have and you have an yes, opinion, आप yes, suggest yes, you can. Because I'm using last 4 years carbon fiber, Nike Alpha Fly. तो आप कर सकते हैं, बट वही अगेन आपको ट्रेनिंग में पहले देखना पड़ेगा। अपने जो एक्सपर्ट है, जो आपके कोचेस से मेंटर से, उनसे बात कर लीजिए कि वो आपको कार्बन शू आपको सूट करता है कि। एज पर माय सजेशन, मैंने जितना रीड किया है, अगर आपका पेस 530 अबव है तो आपको कार्बन प्लेट शू की जरूरत नहीं है। वो कार्बन प्लेट एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर आपको पेस, अगर इफ प्लानिंग फॉर सब 9 सब 10, देन आपको कार्बन प्लेट यूजफुल है। दिस इज रियलिटी एज पर माय एक्सपीरियंस। अगर आप सब 11 12 फिनिश कर रहे हैं तो आप डोंट वेस्ट मनी इन कार्बन प्लेट, बिकॉज कार्बन प्लेट के कुछ उससे इंजरी चांसेस भी होते हैं। तो आपको अगेन उसमें ट्रेनिंग करना है, 2-3 लॉन्ग रन भाग के देखना है, अपने कोच को बोलना है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देन कोच भी या मेंटर विल डिसाइड कि आपको कौन सा जूता बेस्ट रहेगा। अगेन आपका फुट कौन सा है, न्यूट्रल है, कैसा है, आपको फुट टू फुट डिपेंड भी करता है कि आप कार्बन प्लेट यूज कर सकते हैं कि नहीं। कार्बन प्लेट फुट सबके लिए यूजफुल नहीं है। अगेन जो लोग थोड़ा फास्टर पेस है या फिर जिनको सूट करता है ट्रेनिंग में, वही को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन में कार्बन प्लेट यूज कीजिए। आई हैव यूज्ड 4 times. Yeah, so Vidya is asking where can we find the training plan? So Vidya, training plans are a lot of training plans are available online for comrades. Each trainer for its trainee has a training plan. Each trainer for his trainee has a very specific training plan. So I think Yes. it's a if you can Google through, you will find a good training plans online also from different coaches who are training for comrades. Otherwise, you reach out to any of the coaches who are there in India, right? We have Amit, we have Satish Gujran, we have Striders, Yeah, most welcome. we have Girish Bindra, yeah, Ashnath, Ashok Nath. You just reach out and people will help you with the training plan. Agree, yeah. Right. मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास आइए। इट्स नॉट अबाउट एनी मॉनिटरी। मेरी तरफ से जितना हेल्प होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो फर्स्ट टाइम बेसिकली जो जा रहे हैं उनके लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, बिकॉज मेरा एक पैशन है कि इंडिया में इतने कॉमरेड्स हो जाए। तो इंडिया तो अभी नंबर 1 कंट्री है ही, तो कॉमरेड्स हमारे लार्जेस्ट कंट्री बने इंडिया। Yeah, we are like इस साल around 350 participants है registration. I hope सारे start करें. Again we are number 1, I think. Yeah. In foreign nations we are number 1, of course. This अभी is a proud feeling. ये 350 को we have to go to 1000, Amit. Yes, Over yes, the next that's 3 our years, तो तेरे that's our को motive. 300 करने पड़ेंगे तो 1000 होंगे. Sure. Because लास्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं फर्स्ट ईयर में सिंगल गया था, सेकंड ईयर मेरे ग्रुप से 4 लोग गए, लास्ट ईयर मेरे ग्रुप से 18 लोग गए, इस साल मेरे ग्रुप से 32 लोगों ने रजिस्टर किया है। तो मैं जितना लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, 32 कॉमरेड्स। Wow, that's a आई lot. थिंक मुंबई में That's सबसे awesome. बड़ा ग्रुप अपना ही है। Yeah, तो super. प्लस आप कभी भी कोई आपको हेल्प चाहिए, मैं नंबर में डाल दूंगा। आप मेरे को हेल्प चाहिए, एनी हेल्प, डोंट थिंक अबाउट मनी। आवर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कॉमरेड फिनिश करना है, एंड गिव मी अ लिटिल बिट स्माइल व्हेन यू सी अमित कुमार, दैट्स इट। Yeah, that's a good gesture, Amit, and thanks for that, right? So guys, I mean, Because yeah, this is the beauty about Comrades India fraternity, right? Okay, everybody is willing to help each other, everybody is willing to guide each other, everybody is willing to mentor each other. People who have experienced Comrades 3, 4, 5 times understand how wonderful this race is, and hence are willing to always help others. So please feel free to reach out to any of us and we'll be happy to help. Amit, there is another question which I think partly we spoke about. What type of diet should a runner take while training? You want to answer that? yeah, diet actually I am not a certified dietitian, so I will suggest that आप किसी एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के पास, उनको भी यार उन्हें भी सर्टिफिकेशन किया है, तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप उनके पास जाइए। नॉर्मल डाइट्स वी नो, हम जो रनर्स को देते हैं, आपको कार्ब लोडिंग करना है बिफोर द रन, नॉन वेज नहीं खाना है, प्रॉपर आपको फ्रूट्स लेने हैं, आपका बॉडी का विटामिन D3, कैल्शियम, यूरिक एसिड सब सही होना चाहिए, आपको क्या फूड इंटेक करना है, जंक फूड नहीं खाना है। नॉर्मल डाइट प्लान मैं खुद शेयर करता हूँ, जिनको भी चाहिए आई विल शेयर दैट। बट लेकिन आपको स्पेसिफिक अगर डाइट प्लान चाहिए, आई विल सजेस्ट आपको सर्टिफाइड न्यूट्रिशन या फिर डाइटिशियन से बात करो, उनसे कांटेक्ट करो। मेरे पास बहुत सारे डाइटिशियन का नंबर है जो खुद रनर प्लस डाइटिशियन है। तो वैसे आप ऐसा मत करो कि जो बंदा कभी रनिंग नहीं किया आप उससे डाइट लोगे तो आपको ऐसा बना देगा कि तकलीफ हो जाए। तो आई जस्ट फाइंड
बहुत सारे ऐसे लोकल में भी है, बाहर भी है, जो रनर प्लस डाइटिशियन है। तो बिकॉज का एक सर्टिफिकेशन बंदे से आप लेंगे ना, तो आपको अच्छा यूजफुल रहेगा। क्योंकि जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है, हम जब मेडिसिन लेने जाते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि भाई सर हमको बुखार हो गया, हमको दवाई दीजिए। बहुत कम लोग जाते हैं कि हमको ये बुखार हुआ, हम जाके दवाई लेके आ गए। तो आई विल सजेस्ट दैट आप उनके पास जाइए, उनसे अपना ट्रेनिंग का लोड कितना है, आपका वीक डेज का ट्रेनिंग माइलेज क्या है, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आपका वर्किंग पैटर्न क्या है, उसके बेस पे आप उनसे डाइट का प्रॉपर बना के लीजिए। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। So yeah, Ajit, I mean, he's rightly saying everybody is different. Every person is different. मेरा D3, मेरा recovery rate, मेरा protein intake, everything is different, right? That way. So you have to have your own diet plan also. Just don't add weight over the Hello. period of training, right? So anything else, guys? I mean, lastly, or just we'll kind of wrap up. Amit has put his number up, Upar Vidya. Yes, So other than anyone wrap want? up, I'll put this on the YouTube for everyone to see or share later on. I will keep doing this. We will keep doing this more and more with different comrade runners, so that all of us get wiser and smarter through our training and for the race day. As I said, we will please feel free to reach out for any help that you need. We will try and put what are we doing, where are we running, doing our Sunday runs on the group. So anyone in Mumbai wants to join, please feel free to join. Yeah, I'm happy to help always, right? So I hope it was good. And thank you, Amit. Thank you for spending that 1 hour plus to talk about comrades. We all love comrades. We all love running. We all are passionate about comrades. And hence we are here on this platform. So thank you for your time. You're doing an excellent job in training people, more and more people for comrades. So guys, good luck for your race tomorrow, run tomorrow, and good luck to your entire team. Thank you. I will say something. Yeah, please. Last 6 years I saw first time this type of episode is going on, because देखिए ये चेंज है, एक नया जब एक एम्बेसडर आता है, इंडिया का एम्बेसडर, तो इसके पहले भी एम्बेसडर्स थे, लेकिन लोग एम्बेसडर्स के लोग नाम जानते नहीं। आप जो ये अच्छा एक मुहिम चलाए कि लोगों से बात करना, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, बहुत यूजफुल हो रहा है। और बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि लोग अभी जान रहे कि कश्यप मोदी इंडियन एम्बेसडर है, तो लोग कांटेक्ट रीच करें, उसके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप खुद उनको बता आगे उनको आप पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर आपने स्टार्ट किया, आई एम रियली हैप्पी। मैं सबको बोल रहा कि ऐसे और भी आगे ऐसे आप करते रहिए, ताकि लोगों के नॉलेज में ज्यादा रहे और कॉमरेज ज्यादा पॉपुलर हो जाए। थैंक यू सो मच टू यू मी। और मेरा जो थोड़ा बहुत जो मैं एक नॉर्मल हूँ, कॉमरेड हूँ, मैं कोई बहुत ही छोटा, मैं जस्ट लर्नर, मैं आगे सीख रहा हूँ। मैं जितना भी सीखा हूँ मैंने उसको शेयर कर सका हूँ। मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपने स्टेज दिया लोगों को बताने के लिए, जो बेसिकली न्यू कॉमरेड्स है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच टू यू, जो इन्होंने ऐसा एपिसोड कंडक्ट कर रहे हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इस साल। इसके लिए थैंक यू सो मच। No, thank you, Amit. Thank you for that. As I said, right, because we all love comrades, we want to do this, and we want more and more Indian runners to experience this wonderful race, comrades, and we will keep doing this more and more. And Sure, I'm sure, always please. open for any feedback that you guys have. Collectively, it is our responsibility, runners and trainers like you, experienced comrades like me, to make this a much larger race in India. Sure, So sure. thank you guys, and thank you, Amit, for this. Bye थैंक यू सो bye. मच एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। मेरा Good फ्लो night. हो गई। Thank you, sir. Thank you, Thank Kashyap you, ji. guys. Thank you for organizing. Good night. Bye Yes, bye. good night. See you. थैंक यू सर। Thank you. Thanks a lot. Thank you, gentlemen. Thank you all. Yes, thanks.